98 के बात की है 98 के होंगे, 98 से पहले का कोई बच्चा नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपके इस दुनिया में आने से पहले जो है पाकिस्तान में न्यूक्लियर प्लांट अपना रेडी कर लिया था और एटॉमिक धमाके भी कर लिए थे। सही है? तो आज ये पाकिस्तान के डिफेंस से मुतालिक यहाँ पे कुछ बातें होंगी और हमारे गेस्ट स्पीकर होंगे। अच्छा, ये जो सेमिनार है, एक दफा आप लोगों को ये तय करना होगा कि यहाँ पर जब हम बात शुरू करें तो सिर्फ हमारे स्पीकर्स की आवाज जो है यहाँ पे, यानी गेस्ट स्पीकर्स की। अस्सलाम वालेकुम। भरपूर तालियों में वाइस चांसलर ये सेशन हम इंटरेक्टिव सेशन बनाएंगे और इसमें सिर्फ तकरीरें नहीं होंगी कि रेस्टोरेंट पे आके ना गेस्ट स्पीकर सिर्फ एड्रेस करके चले जाएं, ठीक है? यहाँ प्रॉपर जिस तरह आप टीवी चैनल्स पे देखते हैं प्रोग्राम होता है, इस तरह यहाँ पर उनके साथ क्वेश्चन आंसर होंगे और आप भी उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। तो आपका कोई भी क्वेश्चन, आपकी कोई भी राय आप ओपनली उस चीज को शामिल कीजिएगा, क्योंकि आज का जो हमारा बुनियादी एजेंडा है वो यही है कि पाकिस्तान के डिफेंस और पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है वो अपनी जगह पर है, लेकिन जो आपके यूथ की पावर है, जो आपकी अपनी स्ट्रेंथ है, उसको पाकिस्तान की प्रोग्रेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए कैसे यूटिलाइज किया जाए। ठीक है, तो हम तिलावत पाक से आज के इस प्रोग्राम का आगाज करेंगे। अब हम कौमी तरानी की तरफ बढ़ते हैं और सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी नशिस्तों से खड़े हो जाइए। पाकिस्तान जिसका दिफा नाकाबिल तस्लीम है, एक ऐसी न्यूक्लियर रियासत होने के नाते पाकिस्तान का मकाम पूरी दुनिया में मुमताज है। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत देखकर दुश्मन घबरा जाता है। पाकिस्तान आर्मी के इस वक्त 5,60,000 हाजिर सर्विस अफसरान और जवान हैं, जिसके 5,50,000 रिजर्व यानी रिटायर्ड आर्मी अफसरान हैं। पाकिस्तान नेवी के 54,100 हाजिर सर्विस अफसरान और जवान हैं, जबकि रिजर्व 5,000 नेवल अफसरान हैं। पाकिस्तान
ٹن کا لارجسٹ ییلڈ ٹیسٹ بھی شامل ہے اور اس وقت 2750 کلومیٹر کی رینج کے شاہین 3 میزائل کا استعمال کیا گیا. پاکستان کے دفاعی نظام کو مضبوط بنانے والے اہم اداروں میں ایئر ویپن کمپلیکس, ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا, گلوبل انڈسٹریل ڈیفینس سولوشنز, ڈیفینس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آرگنائزیشن, کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس, کروٹا ریسرچ لیبارٹریز, نیسکوم نیشنل ڈیفینس کمپلیکس, پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس, پاکستان آرڈنینس فیکٹری اور انٹیگریٹڈ ڈائنامکس بھی شامل ہیں. پاکستان کی ممتاز حیثیت ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان فرسٹ اسٹرائک نیوکلیئر اسٹریٹجی رکھتا ہے. یعنی دشمن کی جانب سے اگر نیوکلیئر وار کا خدشہ ہوا تو پہلا اسٹرائک پاکستان کی جانب سے ہوگا, جس نے بھارت کے دفاعی نظام کے ہوش اڑا دیے تھے. بعض عالمی اداروں کے اطمینان کے لیے پاکستان نے نیوکلیئر تنازع کو یہ کہہ کر ختم کیا کہ اپنے دفاع کے لیے پاکستان سیکنڈ اسٹرائک کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے, جس کے لیے نیول بیس کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہر لمحہ ایکٹیو ہے. 1971 کی جنگ کے بعد پاکستان کو امریکہ کی جانب سے ملٹری امداد ملی اور 1972 سے پاکستان ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا اور پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کے ذریعے H-6J, H-7B, معراج 3 اور معراج 5 بنانے میں مصروف ہوا, جبکہ کراچی شپ یارڈ کے تحت پورٹ قاسم پر سب مرین بیس کی تعمیر نو کی گئی, جس کے بعد 1999 میں کراچی شپ یارڈ پہلی لانگ رینج سب مرین ایکوسٹا 90B تیار کر چکا تھا. اور اس طرح سال 2000 میں JL-17 اور الخالد 10B تیار ہوئے. پاکستان کے پاس اس وقت کل 1387 ایئر کرافٹ ہے, 357 فائٹر طیارے ہیں, 90 اٹیکس کے لیے وقت ہے, 360 ہیلی کاپٹر اور 57 اٹیک ہیلی کاپٹر بھی شامل ہیں, 2834 ٹینکس ہیں, 9950 آرمرڈ وہیکلز ہیں, 682 سیلف پروپیلڈ آرٹلری, 1208 ٹاؤٹ آرٹلری ہے, 560 راکٹ پروجیکٹرز ہیں. پاکستان نیوی کے پاس 6 بریگیڈز اور 9 سبمرینز ہیں, 48 پیٹرول کریزرز ہیں اور 3 میرین وارفیئر ہیں. پاکستان کے دفاعی نظام اور مضبوطی نظام میں انٹر سروسز انٹیلیجنس یعنی ISI سمیت تمام انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جو اس مدعے پر متفق ہیں کہ پاکستان میں ہونے والی تمام دہشت گردی اور انسٹیبلٹی کے پیچھے دشمنوں کا اصل ایجنڈا پاکستان کو غیر مستحکم ریاست قرار دے کے اس کے نیوکلیئر اثاثوں پر قابض ہونا ہے. اسی سلسلے میں پہلے دشمنان پاکستان کو اسپانسر ٹیررسٹ گروپ بنا کر ناکامی ہوئی اور پھر پولیٹیکل ڈیسٹیبلائزیشن میں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. بالآخر پراکسی وار کا آغاز ہوا تو پاکستان نے دشمن کی اسٹریٹجی کو سمجھ کر منہ توڑ جواب دیا. اب آخری حربہ اکنامک ڈیسٹیبلٹی کا جام, جس سے پاکستان کا دل آزما ہے, کیونکہ ملک میں بڑھی ہوئی کرپشن بد انتظامی کی بڑی وجہ ہے اور بد انتظامی کے سبب مہنگائی اور بے روزگاری ڈائریکٹ عوام پر اثر کرتی ہے. اور یہیں سے سوشل میڈیا کے جنریشن وار کے ذریعے فرسٹریٹڈ مائنڈ سیٹ کو ملک کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. پاکستان اس مسئلے سے اس وقت تک نہیں نکل سکتا جب تک عوام اور بالخصوص تو آٹومیٹیکلی ہم دفاعی طور پہ بھی مستحکم ہو جائیں گے. اسی ایجنڈا کے ساتھ ہم آج کے اس یوم تقدیر یوتھ کانفرنس کے پینل ڈسکشن کا آغاز کریں گے. میں ریکویسٹ کروں گا کہ پروجیکٹر اسکرین کو اوپر کر دیں اور یہاں کی تمام لائٹس کو آن کر دیں اسٹیج کے سائڈ کی. سب سے پہلے میری ریکویسٹ ہوگی ہمارے جو گیسٹ اسپیکرز یہاں پہ موجود ہیں, پینلسٹ موجود ہیں, گیسٹ آف آنرز موجود ہیں, سینئر ریسرچر ہیں اور مختلف پلیٹ فارمز پہ بینر اینالسٹ اپنے تجزیے سے آگاہ کرتی رہی اور تھنک ٹینکس کو بھی آپ نے لیڈ کیا اور پاکستان کے انٹرنیشنل افیئرز, ڈپلومیٹک ایشوز, بالخصوص پاکستان کے اسٹریٹجک ایشوز پہ آپ کی ہمیشہ گہری نظر رہی. بھرپور تالیوں میں ڈاکٹر خالدہ غوث صاحبہ. ہماری آج کی سیکنڈ پینلسٹ گیسٹ اسپیکر میڈیا سے تعلق رکھتی ہیں اور بڑے طویل عرصے تک مختلف ٹیلی ویژن چینلز پہ آپ نے اپنی خدمات انجام دی, ARY نیوز اور مختلف ٹیلی ویژن چینلز, اور آج کل آپ نیوز 1 سے وابستہ ہیں. آپ کا ایک پروگرام بھی بڑا مشہور ہوا کیا ہم تیار ہیں, اور آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم بالکل تیار ہیں آج پینل ڈسکشن کے لیے. بھرپور تالیوں میں شمائلہ نواز صاحبہ. اور اس ڈسکشن
ڈسکشن کا مزہ اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک وائس چانسلر صاحب ہمارے درمیان نہ ہوں. تو میں ریکویسٹ کروں گا وائس چانسلر جناب ڈاکٹر جنرل صاحب چونکہ شمالی نواز اینکر ہیں تو آج اینکر کی سیٹ پہ بیٹھ گئی ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا کہ آج آپ گیسٹ ہیں تو آپ پلیز پینل والی جگہ پہ آپ آئیے تاکہ ہم آج کے اس ڈسکشن کا آغاز کر سکیں. اور میری ریکویسٹ ہوگی ایک اور پینلسٹ ہمارے درمیان اب سے کچھ دیر میں ہمارے درمیان ہوئی اور ایک دفعہ مائک چیک کر لیتے ہیں کیونکہ ہم اس سیشن کو چیک 1 2 3 چیک 1 2 3 میرا مائک والے کا آواز پیچھے نہیں آ رہی ہے. میرے مائک کو چیک کر دیجیے گا. بسم اللہ بسم اللہ. ٹھیک ہے, اس میں آواز آ رہی ہے سب کو؟ اچھا, آپ بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں. آپ کے کوئی کوشچنس ہوں آپ شامل کر سکتے ہیں. پہلے میں چاہوں گا کہ یوم تکبیر 28 مئی 1998 کے حوالے سے ہم گفتگو کا آغاز کریں اور پھر وقتاً فوقتاً ہم آگے بڑھیں گے. تو ڈاکٹر خالدہ فوز صاحبہ سے میں گفتگو کا آغاز کروں گا کہ ڈاکٹر صاحبہ ہم نیوکلیئر اسٹیٹ بن گئے اور ہم نے نیوکلیئر اسٹیٹ بننے کے لیے بڑی جدوجہد بھی کی اور اس کے بعد کے چیلنجز بھی ہمارے سامنے موجود ہیں. آج ہم کدھر کھڑے ہیں اسٹرینتھ وائز, کیونکہ پاکستان کا جو معیار دیکھا جا رہا ہے اکنامیکلی وہ بڑا زبان ہے اور انٹرنلی بھی ہم اپنے آپ کو ویک فیل کر رہے ہیں, لیکن ایک طرف ہم بہت بڑی پاور بھی ہیں. تو ہم کدھر اسٹینڈ کرتے ہیں؟ تھینک یو عمر. آئی تھنک جہاں تک یوم تکبیر کی بات ہے, مجھے یقین ہے کہ نوجوان جانتے ہوں گے اور سمجھتے ہوں گے تبدیل کا مطلب ہے گریٹنس. اور اگر سوچا جائے تو اس کے بعد سے ہمیں اپنی سمت کا تعین کر لینا چاہیے تھا من حیث القوم, معاشی طور پہ بھی, معاشرتی طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی بہت کلیئرٹی آ جانا چاہیے تھی. اسی کیونکہ ہم پہلی مسلم ملک تھے کہ جس نے وہ چورائی کے اندر دھماکے کیے تھے, نیوکلیئر ٹیسٹ کیے تھے. اینڈ وی ور دی 7th ان دیٹ کلب, اور پہلا مسلم ملک. تو بڑی فخر کی بات تھی. اس کے بعد کوئی ابہام نہیں رہنا چاہیے تھا کہ ہمیں اتنا ڈائریکشن لیس آخر میں LUSS آ رہا ہے, نہیں رہنا چاہیے تھا. آج اگر آپ معاشی طور پہ دیکھیں تو آپ زیادہ پیچھے نہ جائیں. اگر آپ کی انفلیشن کی ریٹ سے دیکھیں کمپیئرنگ ود 2018, پاورٹی لائن کو دیکھتے ہیں آج آپ کی کیا ہے, 40%. یہ بڑی کنسسٹنٹلی 2018 سے انکریز کرتی چلی گئی ہے. اور یہ میں اس ملک کی بات بتا رہی ہوں جہاں پہ 60% نوجوان ہیں. کسی ملک کے اندر جب نوجوان ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ اس کو ہمیں ڈویڈنڈ میں کنورٹ کرنا ہے. 60% نوجوان. انمپلائمنٹ ریٹ آپ کا اسی نوعیت سے جو ہے وہ آپ نے ابھی اس میں شروع کیا ہے اور آپ نوجوانوں نے اسے دیکھا ہوگا, اٹ از اوور 30%. خالی انمپلائمنٹ مت کہیے کیونکہ یہ اس سے تھوڑا سا زیادہ سنگین ہے. جس ملک میں بینکرپسی آف امپلائمنٹ اپرچونٹی ہو جائے تو تھوڑی سی زیادہ گمبھیر سچویشن ہو جاتی ہے. کیونکہ میں ایک رپورٹ صبح ہی پڑھ لی تھی کہ جہاں پہ یہ ورلڈ بینک کی تھی کہ ہر 10 میں سے ایک آدمی ایکسپیرینس کر رہا ہے ان ایمپلائمنٹ کو. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں انفلیشن از ان ڈبل ڈیجٹس.
ट्रेड आपकी ये देख रहे हैं कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट is hostage to political instability in all seriousness. आपकी political stability पिछले 1-1.5 दहाई के अंदर अगर तसलसल से चलेगी तो आप पॉलिसीज को अपनी कंटिन्यूटी रख पाएंगे, आप इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट और कानून दे पाएंगे, कानून साजी कर पाएंगे, तो फिर कहीं जाके आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी. आपकी खवातीन जो आधी आबादी है वो वर्क फोर्स का 22% है. मगर मैं इतना मंफी नहीं बोलती. अब मैं आपको अच्छी बात तो बता दूं कि डॉक्टर्स की तादाद आपकी बढ़ ली है, इंजीनियर्स की आपकी तादाद बढ़ ली है. UIT के अंदर बैठ के मैं बात कर रही हूँ तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की तादाद आपकी बढ़ ली है. मगर क्या चीज नहीं हो रही डॉक्टर साहब, वो ये नहीं रहा है कि आप कंट्रीब्यूट, आपका आउटपुट जो पब्लिकेशंस होते हैं जिससे आप दुनिया में कंट्रीब्यूट करते हो और आप अपनी आवाज और आप अपनी साइंटिफिक रिसर्च प्रोड्यूस करते हैं, वो पाकिस्तान नहीं कर रहा है. तो आप मार्केट में तो थ्रो कर रहे हैं ये बेसिकली, बट द साइंटिफिक रिसर्च इज नॉट देयर. So if you look at the figures और खुद को compare करें with India, with Bangladesh, तो we are performing poorly. आपका रैंक क्या आता है इनोवेशन आउटपुट में, मैं नौजवानों बता दूं, आपकी रैंकिंग is 117th. So that is the situation like. तो कहने का मेरा ये मतलब है, I'm not a pessimist. मुझे ये लगता है कि हम बहैसियत माशरा, बहैसियत मुल्क, बहैसियत कौम डायरेक्शन लेस हैं. और अगर हमारा बिहेवियर देखें एज अ मैप, एज अ कौम, एज अ हुक्मरान, तो we either are confused या उसके अंदर आपको होपलेसनेस दिखती है, मायूसी. तो जी एंड होपलेसनेस. डॉक्टर साहब बड़ा आपने वैलिड पॉइंट रेज किया, इस पर निशानदेही हर कोई करता है. मैं डॉक्टर साहब की तरफ आना चाह रहा हूँ कि क्यों हम डायरेक्शन लेस हैं, हमें लीडरशिप सही नहीं मिली या लीडरशिप को ये चांसेस नहीं मिले कि वो अपनी लीडरशिप प्रूव कर सके. थैंक यू वेरी मच. सबसे पहले तो मैं आप सबको शुक्रिया अदा करूं, ऑडियंस का भी शुक्रिया अदा करूं जो कि मोस्टली UIT यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ही हैं. तो सबसे पहले तो मैं पहले टॉपिक पे थोड़ा सा जाऊंगा कि ठीक है, एक ज़रूरत थी हमें एक फोर्सफुली कह दें कि न्यूक्लियर पावर बनना पड़ा, क्योंकि हमारी एक ज़रूरत थी. हमारे जो नेबर स्टेट में न्यूक्लियर बना रहे थे तो हमें भी बनाना था, क्योंकि वो हमें ताड़ भी रहते हैं वक्त कि देखो हमारे पास है, आपके पास नहीं है. वो एक हफ्ता जो हमने जैसे गुजारा बाहर, आप लोगों ने तो शायद आप कुछ थे भी नहीं, मैं US में था, तो इंडियन हमें ताड़ते थे, आके हमारे फ्रेंड ही होते थे कि देखो हम तो न्यूक्लियर पावर बन गए, आप नहीं बन सके. एक हफ्ते बाद मैंने उनका शुक्रिया अदा किया, मैंने कहा आप लोगों ने हमें भी न्यूक्लियर पावर बना दिया. लेकिन आप देखें कि क्या न्यूक्लियर पावर बनने से मुल्क बच सकता है? जरूरत थी हमारी. रशिया का एग्जाम्पल लें, क्या वो न्यूक्लियर पावर नहीं था जब वो टूटा? क्या उसके पास एक स्ट्रॉन्ग आर्मी नहीं थी जब वो टूटा? रीजन क्या थी? रीजन आपके पास इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इनोवेशन से आती है, इनोवेशन आपके स्ट्रॉन्ग एजुकेशन से आती है, जो आज तक हमने रियलाइज नहीं किया, हमारे यंगस्टर ने भी रियलाइज नहीं किया. उनके पेरेंट्स ही जा के सिफारिश में लगे हुए हैं, वो खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं. स्टूडेंट खुद जा के सिफारिश करते हैं, ये खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है. किसी मुल्क को अगर तबाह करना हो, आजकल की ये स्टेटमेंट स्लोगन चल रही है
कि उसके एजुकेशन सिस्टम को आप तबाह करें, क्योंकि आप देखें स्ट्रॉन्ग आर्मी वर्सेस वेरी वीक आर्मी वो कॉन्कर नहीं कर सकी, तो कॉन्करिंग जो बाय ब्रूट्स वो हो नहीं सकती, कोई आपको कॉन्कर नहीं कर सकता, लेकिन आपने उठना है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। और ये जो आप यंगस्टर्स हैं, मैं कहता हूँ 1 पॉइंट पे ये मुल्क बन सकता है, 1 पॉइंट पे कोई मुल्क भी बन सकता है, वो है सच्चाई। आप सच्चाई की तरफ आ जाए, आपका लीडर भी आप में से ही होगा, आपका लीडर वही बन, बाहर से कोई नहीं आया। रशिया ने भी इंटरफेयर किया यूएस की इलेक्शन में, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, 5 साल करने दिया उसको। हमें उस पे पढ़ना ही नहीं चाहिए, हमें अपने एजुकेशन की तरफ देखना चाहिए। अगर हम सही एजुकेशन विद ऑनेस्टी से शुरू करें, आपका लीडर भी ऑनेस्ट हो, आप भी ऑनेस्ट हो जाए। ऑनेस्टी की मीन्स कि हम आपको एग्जाम दें और कोई इन्विजिलेटर ना हो, कोई सुपरवाइजर ना हो, आप घर में बैठ के बगैर नकल के खुद कर लें, इसको बोलते हैं ऑनेस्टी। ऑनेस्टी हो कि करप्शन ना हो, ऑनेस्टी हो कि जो ऑन द ग्राउंड ऑनेस्टी हो, तो उससे आपकी इनोवेशन भी आ जाएगी, आपकी एजुकेशन की क्वालिटी भी बन जानी है। जब इनोवेशन आएगी तो करंट अकाउंट डेफिसिट खुद ठीक हो जाएगा। आप देखें एक इलॉन मस्क $44 बिलियन ऑफर करता है ट्विटर पे, ठीक है, लेकिन हमारे पास $1 बिलियन पूरे मुल्क के पास नहीं होता। तो इसीलिए क्योंकि हमारे पास एक इलॉन मस्क होना चाहिए, हम उसको ले आए, आप पूरे सारे यंगस्टर उनको दे दें। तो 60% यंग में हमें 3-4 इलॉन मस्क की चाहिए, लेकिन अगर आप कोशिश करें तो आप सब बन सकते हैं, ये नहीं है कि नहीं बन सकते। आजकल तो इंटरनेट का दौर है, ग्लोबल इकोनॉमी है, सिर्फ और सिर्फ सच्चाई की तरफ आ जाए। तो मेरे ख्याल में तो एक ही पॉइंट है, लोग तो कहते हैं कि मेरिट, ये सच्चाई पे आएंगे तो मेरिट भी आ जाएगा, सच्चाई पे आएंगे तो कौम भी हम बन जाएंगे। अभी तक तो मुझे लगता है कि हम कौम भी सही तरीके से नहीं बने, वही अकरवा पड़बड़ी चल रही है, वही अपने लिए सोचा जा रहा है। तो इंडिविजुअलिस्टिक लेवल पे उस तक ठीक है जब तक हम ठीक काम करने की सोचें। मतलब है भाई एज इंडिविजुअल आप सोचें कि मैंने गन नहीं फेंकना, तो वो अपने इंडिविजुअल लेवल पे करें, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे अपने आप को बनाना और बाकियों के बारे में नहीं सोचना, उससे फिर मुल्क नहीं बनेगा। तो मेरे ख्याल में इस पे मैं बस कर देता हूँ। थैंक यू। अब साहब ने साथ साथ मोटिवेट भी कर दिया हमें। अच्छा, शुमाइला नवाज का ताल्लुक क्योंकि मीडिया से है और ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और उसके बाद फिर मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ भी आऊंगा और डॉक्टर खालिदा की तरफ। शुमाइला, आप ये बताइए कि पाकिस्तानी मीडिया ने वैसे तो हमेशा ही नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट किया है, और इसमें कोई ऐसी कबात भी नहीं, क्योंकि मीडिया ये समझता है कि उसने तर्जुमानी उस चीज़ की करनी है जिसमें बिगाड़ पैदा हो, ताकि वो फिर सुधरे, ताकि उसमें इस्लाह हो। लेकिन यहाँ ये हुआ कि जो ये यूथ है, ये जो बच्चे हैं, जो कल कोई CEO बनेगा तो कोई किसी कंपनी में मैनेजर बनेगा तो कोई इंजीनियर बनेगा, जब ये कल प्रोफेशनल बन जाएंगे तो ये हमारे मीडिया की वजह से क्या मैसेज मार्केट में लेके जाएंगे, इनका ब्रेन कैसा जाएगा, और फिर ये जिन लोगों की क़यादत करेंगे, यानी इनके अंदर जो लोग होंगे ये किस तरह क़यादत करेंगे, वो फिर कौन लोग तैयार होंगे। तो इसमें गलती मीडिया की थी या रेगुलेटरी बॉडीज यानी गवर्नेंस की इसमें गलती थी, जिससे मीडिया को सही गाइडलाइन नहीं दी, और ये जो हमारी यूथ और फिफ्थ जनरेशन वॉर का जो सबसे बड़ा टारगेट थी, ये जिस चीज का बेचारे निशाना बन गए, इनका जिम्मेदार कौन है? अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है ये, ख़ास तौर पे यंगस्टर्स के लिए। मैं जब यंगस्टर से बात करती हूँ या स्टूडेंट से बात करती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। उसकी वजह ये है कि आपके पास बहुत ज़्यादा जोश होता है, बड़ा जज्बा होता है, बड़ी पावर होती है, और यंग ब्लड जो होता है उसके पास आगे वक्त भी बहुत होता है, कुछ करने के लिए जो जज्बा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, उन्होंने मुझसे कहा कि मीडिया ने क्या किरदार अपना अदा किया। मैं समझती हूँ, मैं खुद मीडिया से रिलेटेड हूँ, मैं समझती हूँ कि मीडिया अपना वो किरदार नहीं अदा कर पाई जो कि उसे अदा करना चाहिए था, क्योंकि कौम को बनाने के लिए हर
हर इदारे को अपना किरदार अदा करना पड़ता है. फोर्थ पिलर तो कहते हैं मीडिया को, लेकिन उसने वो किरदार बिल्कुल भी अदा नहीं किया. मैनेजमेंट के भी इश्यूज हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने जैसा कहा, उनकी बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि एजुकेशनली हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमारी तवज्जो नहीं है. देखिए, हम तालीम तो देते हैं डॉक्टर साहब, लेकिन हम तरबियत नहीं देते. ठीक है, तो उसमें कसूर सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि मीडिया का है या टीचर्स का है. ये सब मिलके एक स्टूडेंट को तैयार करते हैं अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिए. आप मुस्तकबिल के मेहमान हैं, आपको पढ़ाया तो जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली आप इन नहीं होते. आप देखिए ना, इंडस्ट्री क्यों हमारी प्रॉब्लम में आ जाती है, क्योंकि जो आप थ्योरी पढ़ रहे होते हैं और जो इंडस्ट्री की डिमांड होती है उसके दरमियान में गैप होता है. ठीक है, तो वो गैप फिल करने के लिए कोई चीज़ नहीं है. अगर यहाँ मीडिया किरदार अदा करे कि वो ऐसे प्रोग्राम्स लेके आए जो एजुकेशन से रिलेटेड हो, जिसमें वो स्टूडेंट्स को बुलाएं. मेरा ख्याल है पीजीबी में एक वक्त था जब इस तरह के प्रोग्राम्स होते थे, कसौटी वगैरह भी होता था और बैतबाजी के मुकाबले भी होते थे और भी बहुत सारे प्रोग्राम होते थे. ठीक है, किसी को पता है कसौटी भी एक प्रोग्राम है? एक बच्चा तुमने भी फेसबुक पे देखा हो उसको. जी, नीलाम घर होता था. बिल्कुल नहीं, नीलाम घर तो बड़ा मशहूर है और बड़ा इंफॉर्मेटिव होता था वो. तो ये सब प्रोग्राम अब कहीं पे भी नजर नहीं आएंगे. खासतौर पे जब से ये निजी टेलीविजन आए हैं तो उसके बाद में ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई. एजुकेशन के हवाले से कोई प्रोग्राम नहीं है, हेल्थ के हवाले से कोई प्रोग्राम नहीं है. और इस यहाँ कसूर गवर्नेंस का है. यहाँ पे आपकी जो गवर्नमेंट है उसको चाहिए कि रेगुलेटरी जो इदारे हैं उनको चाहिए कि वो इनको कहे. हर चीज़ व्यूवरशिप तो है, बिल्कुल है, लेकिन मिर्च मसाले से हट के कुछ चीज़ें इंफॉर्मेशन के लिए भी होती हैं, हमारी नौजवान नस्ल की तरबियत के लिए भी होती है. देखिए, जब वो मुआशरा कभी कामयाब नहीं हो सकता जहाँ अखलाकियात की तरबियत ना की जाए. ठीक है, तो अखलाकियात की तरबियत के लिए मीडिया अपना किरदार अदा कर सकता है, लेकिन वो नहीं कर रहा और इसके लिए ज़रूर एक्शन लेने की ज़रूरत है. यही सेम क्वेश्चन है कि मीडिया ने हमें बिगाड़ की तरफ अगर ले आया है तो गवर्नेंस, ये जो हमारी गवर्नमेंट्स रहेंगी मुख्तलिफ दौरान, उन्होंने अपना जो इम्पैक्ट किया उस पर या नहीं. देखिए, ये बहुत डिटेल्ड इससे क्योंकि जवाब मांगता है. ये पूरे पूरे माशरे को रिफ्लेक्ट करता है, बिहेवियर किस नौयत तब्दील हुए और इसमें क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं. इसमें खाली मीडिया ही जिम्मेदार नहीं है. मीडिया का डेफिनेटली कल्चर तब्दील करने में बहुत ऑब्वियस रोल है. इसी क्योंकि कहीं ना कहीं मैं 83-82 से मीडिया से एज एन एक्सपर्ट कनेक्टेड रही हूँ. मैंने मीडिया को बहुत तेज़ी से तब्दील होते हुए देखा और उसका असर, जो इम्पैक्ट कल्चर तब्दील करने में आप लोगों का जो किरदार रहा, वो मैं क्या कहूँ, ना कहूँ तो बेहतर है. बस ये है कि बंदे को खुद को अपने आप को अलग कर लेता है. मगर इसमें और भी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, खाली मीडिया ही नहीं है. देखिए, मैं एक बात जिस पे कहना चाहती हूँ कि, और नौजवान आप ये बात सुनिए, इसी क्योंकि आप लोग बहुत प्रो एक्टिव हैं आजकल. आप लोग सुनिए ये बात. जब हम तालीम की बात करते हैं, तालीम के साथ आम तौर पे कहते हैं तालीम और तरबियत. लोग आम तौर पे ये भूल जाते हैं कि डिफरेंट लेवल की तालीम का डिफरेंट काम होता है. एंड दिस इज माय रिक्वेस्ट उमर, इसी क्योंकि देखिए, स्कूल की लेवल की तालीम का अलग काम होता है, सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल की तालीम का अलग काम होता है. टर्शियरी लेवल की तालीम से आप नहीं ये तवक्को कर सकते कि वो एक बच्चे को बिठा के यहाँ पे वाइस चांसलर इस बच्ची की तरबियत करना बैठ गया. What he can do, because I've been a professor all my life, I can work on the making of the mindset of these students. Are you getting my point? तो हर लेवल की तालीम का काम अलग होता है. एजुकेशन जो होती है वो इंसानों की या तो इनकलकेट करती है थिंकिंग माइंड्स को,
یا ایجوکیشن لے کے آتی ہے وزڈم ایک انسان کے ذہن کے اندر کہ وہ وزڈم جنریٹ کر دے یا کریٹ کر دے ایک بندے کے اندر. ہمارے یہاں کی تعلیم جو ہے وہ وزڈم نہیں جنریٹ کرتی یا کریٹ نہیں کرتی ہے. ایسی تعلیمی نظام ہی نہیں ہے. ہماری تعلیمی پالیسی بھی اس نوعیت کی ہوتی ہے کہ وہ ایک اچھے کردار کو بلڈ کرنے میں لگ جاتی ہے. پرائمری سیکنڈری ٹرشری لیول ایجوکیشن جو ہوتی ہے ان کے الگ الگ کام ہوتے ہیں. We can't treat them as primary and secondary level students. We need to treat them very differently کیونکہ یہ ٹرشری لیول کے ہیں. دوسری بات میں آپ کو یہ بات بتا دوں, میں کل ہی کہیں پہ بول رہی تھی بحریہ یونیورسٹی میں, and I know the numbers, statistics. According to the World Bank report, Vice Chancellor صاحب, tertiary level education میں کے لیے World Bank report کے حساب سے 0.55% of the GDP is allocated to the tertiary education. And listen, حکومت کا ارادہ تھا کہ 2025 تک اسے انکریز کر کے 1.25% پہ اور جی ڈی پی پہ لے جائے گی. حکومت کا ارادہ تھا کہ فی الوقت ٹرشری ایجوکیشن پہ جو ہے 9.99% انرولمنٹ ریٹ ہے. ان کا ارادہ تھا 2025 تک اسے 12% پہ لے جائے گی. تو جب یہ صورتحال ہوتی ہے آپ کے ملک کے اندر ٹرشری لیول ایجوکیشن کی 0.5, this is World Bank report. What do you expect? دیکھیے آپ تعلیم کی بات ابھی وائس چانسلر صاحب نے کہی تھی. ہم لوگوں کو یہ بات ابھی ہم یوم تکبیر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. It is very nice جو ہماری سیکیورٹی, جو ہمارے ڈیفنس جس نوعیت سے ہم نے اپنی تقویت پائی ہے, اور جو پیراملٹری فورسز اور یہ ساری, اٹ از اے اسٹیٹ سیکیورٹی ڈومینیٹڈ کنٹری دیٹ وی لیو ان. وہ سمجھ آتی ہے کیونکہ ہمارے ویسٹرن بارڈرز اور ایسٹرن بارڈرز سے ہمیں ہر وقت خطرہ رہتا ہے. اس میں کوئی ہمیں ایشو اور اسے پولیٹیسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر پروپورشنٹلی آپ ہیومن سیکیورٹی ایشوز کو بھی ایمفسائز کریں. المیہ یہ ہے کہ جب ہم ہیومن سیکیورٹی کے اوپر ایمفسائز کرنے آتے ہیں اور جب ہم کہتے ہیں کہ سوشل ڈیولپمنٹ ایشوز کے اوپر بھی ایکولی آپ ایمفسائز کریں, تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ سارے کے سارے ہم جا کے گٹر دکھانے لگے, نالے دکھانے. Nobody comes down to the basic social development issues which are health care, which are سوشل میڈیا کا امپیکٹ ہو رہا ہے. آپ سبھی سوشل میڈیا یوزر ہیں, تو پہلے جنرلائز طریقے سے ہم جان لیتے ہیں کہ کوئی ایسا تو نہیں یہاں پہ جو بالکل ہی سوشل میڈیا یوز نہ کرتا ہوں. کوئی ایک ایسا بچہ جو ہوتا ہے کہ میری نہ فیس بک آئی ڈی ہے, نہ انسٹاگرام آئی ڈی ہے, نہ ایسا کوئی نہیں ہے. سب جو ہے وہ ویپن رکھتے ہیں, کیونکہ یہ جو موبائل گیجٹ ہے یہ ایک ویپن ہے اور یہ ڈیجیٹل ویپن ہے. تو سب کے پاس اگر یہ چیز موجود ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ کا اگر پینلسٹ سے کوئی سوال ہے تو آپ ریز کیجئے, دین پھر میں آگے اس کو پروسیڈ کرتا ہوں. آپ میں سے کسی کا کوئی کوشچن ہے, ہینڈ ریز کر سکتا ہے وہ بھی نیچے کر لیا. آپ آگے آ جاؤ, مائک ان تک پہنچا دیں. تو میرا یہ سوال یہ تھا کہ آج ہم یوم تکبیر کے لیے بیٹھے تھے, ہم نے تھوڑا سا انٹروڈکشن دیتے
यौम तकबीर का हम आते हैं सोशल इश्यूज पे, हम शुरू हो गया एजुकेशन का। ये आज तक मैंने यूनिटी का नाम मेरा आज थर्ड ईयर चल रहा है, ये चीज़ तो मैंने हमारे आईटी रोज सेमिनार्स वगैरह ये जो डिफरेंट उनको गेस्ट करवाती रहती है, इनका ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और जिससे मुझे एक चीज़ तो पता चल गई कि हमारे पास इश्यूज हैं, एजुकेशन का इशू है, हमारे पास दूसरा इशू है क्या कहते हैं आप इकोनॉमिक इशू, हमारे पास इनोवेटिव आइडियाज नहीं है, स्टार्टअप्स नहीं है, हमें यूथ को करना है, ये काम करना किस तरह ये नहीं बताता हूँ, मुझे सब बताता है, हर कोई नहीं बताता। अच्छा, बहुत जबरदस्त अंदाज में उन्होंने कहा कि मसले सब बताते हैं, हल कोई नहीं बताता। हमेशा ये पहले सोचना चाहिए कि मसला बताया क्यों जा रहा है। इस सेमिनार का पार्ट वो डॉक्यूमेंट्री भी थी। अब वही चीज अगर एक स्पीकर आपको बताता तो शायद वो ज्यादा टाइम लेता, लेकिन डॉक्यूमेंट्री में वो चीज समझ होके आती है और एक लिमिटेड टाइम में वाजे हो जाती है। तो उसमें बड़े वाजे अंदाज में हमने बताया कि जब आप न्यूक्लियर स्टेट बन गए, आपके पास जो आप अपने दिफाई सलाहियत बढ़ाते जा रहे हैं, उतना आपके लिए दुश्मनाने पाकिस्तान मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं। तो पहले जो उन्होंने आपके लिए मुश्किल खड़ी की वो मुश्किल दहशतगर्दी की कहानियां थी जो अभी भी वक्तन फवक्तन होती हैं, फिर प्रॉक्सी वॉर थी, और आखिर में आपको पॉलिटिकल सिचुएशन जो इस वक्त चल रही है वो थी, और प्लस जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें लाके आपको खड़ा कर दिया। तो जब तक आप इस इकोनॉमिक सिचुएशन में स्टेबल पोजीशन पे नहीं आएंगे, जिसको डॉक्टर साहब ने भी एड्रेस किया, वो आगे की बात थी कि उन्होंने उस चीज को एड्रेस किया कि आप जब इनोवेटिव आइडियाज और अपने एजुकेशन क्वालिटी को आगे इम्प्रूव करेंगे, फिर उसमें मीडिया के रोल पे बात आई, फिर डॉक्टर खालिद ने भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर शेयर किया। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो सिर्फ मसले बताने के लिए नहीं है, अब आप उसके हल की तरफ भी बढ़ रहे। तो मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब आप इस पर बात करें, फिर हम एक और क्वेश्चन, आपका भी सवाल है, किसी का क्वेश्चन है तो आप एड्रेस कर सकते हैं ड्यूरिंग टॉक भी। देखिए, ये नौजवान ने बहुत ये इसकी एक ज़हनी कोफ्त जिसे कहते हैं ना कि सब मसाइल बता रहे मगर हल कोई नहीं बता रहा है। आप यकीन मानिए ये जितने मैंने इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, एजुकेशन, एक्सट्रीमिज्म, स्टेट सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, इन सब के हल चीता जो है वो ज़बानी में बताने की ज़रूरत, ज़बानी में बता सकते हैं, मगर इन सारी चीज़ों के ऊपर तहकीक हुई है, हमने भी बहुत किया। आई हैव ओवर 100 पब्लिकेशंस टू माय क्रेडिट, और हमने उन तहकीक के अंदर बयान करते रहे हैं कि इनके हल और मसाइल को किस में, उसी को कहते हैं कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन जो है वो एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। मतलब ये तहकीक में जो फाइंडिंग्स हैं उसकी बुनियाद पर होना चाहिए। आप बिल्कुल इसको सही बात कह रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने इकोनॉमिक इश्यूज आप फेस कर रहे हैं, ये हाइब्रिड वॉर का ज़माना है, ये इकोनॉमिकली आपको वीकन करने का ज़माना है। मिसाल के तौर पर देखिए, GSP प्लस का ज़माना हम पिछले 10 साल से GSP के साथ एंटर किए हैं, मगर पाकिस्तान में अब तक GSP का जो 50% पे बेनिफिट वो ले सकता था, उसने अब तक नहीं लिया है। अब विच आर दोस सेक्टर्स जिसके अंदर पाकिस्तान फायदा ले सकता है? अपैरल है, टेक्सटाइल्स है, सर्विसेज तो नहीं है यहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है। मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं तो खारजा पॉलिसी जेंडर के या इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के हवाले से मेरी एक्सपर्टीज रही है। इस इंस्टीट्यूट की पहली यूनिट पढ़ी थी, आई वाज प्रेजेंट ओवर हियर, आई हैव बीन इन्वॉल्व्ड। तो द पॉइंट इज कि वो आइडेंटिफाइड है, अपैरल है, मैन्युफैक्चरिंग है, टेक्सटाइल है, मगर GSP प्लस का 50% भी उसका पोटेंशियल नहीं किया है। औरतों के हवाले से अब तक उनको इन्वॉल्व किया और उनको बेनिफिट वहाँ पे हुकूमत ने अब तक उनके लिए सेक्टर्स को ओपन अप नहीं किया है। इनफॉर्मल सेक्टर आपका मर गया है, यकीन माने बिल्कुल इट हैज क्रम्बल्ड।
तो और कोविड का उसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा आपके इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर। 70% औरत है, 30% मर्द है, मगर उसको रिवाइव करने के लिए हुकूमत आपकी नहीं तवज्जो पे वो दे पा रही है, क्योंकि वो रेगुलेटेड बॉडी नहीं है। तो ये मेरे कहने का मतलब ये है कि बेटे तुम समझ रहे हो कि इनके हल नहीं है, इनके हल बार बार। अब टेररिज्म के हवाले से 2010 में हमने फिगर्स के साथ निकाला था कि केपीके के अंदर कितना नुकसान हुआ है, कोई पाकिस्तान के अंदर ये जो आप कहते हैं 70,000 अमवात हुई है, वो हमने दी थी। दैट स्टडी वाज लेड बाय मी। मगर आज आप लोग क्या कहते हैं कि आज तक कोई स्टडी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में रुझान पढ़ने का खत्म हो गया है कि स्टडीज को रिफर किया जाए। ये अलमियत ये तो नहीं कि ट्रेजेडी है पाकिस्तान। 90 की दहाई तक, 2000 की दहाई तक policy formulation was based on evidence based research, मगर अब policy formulation होती है मीडिया के इन्फ्लुएंस में आके। और जहाँ जिन मुल्कों में ये चीजें होने लगती है वहां पे नुकसान होने लगता है। तो सारी जगहों पे सारे मसाइल के आपको पता है यूएस एड कंसिस्टेंटली पिछले 10 साल से जो पैसे दे रहा है वो एजुकेशन सेक्टर के अंदर ही रिसर्च करने के लिए दे रहा है। तो चाहे सिंध हो, चाहे पंजाब हो, चाहे केपी के हो, उसमें लिटरेसी आप कैसे बढ़ा सकते हैं, उसमें बेपनाह और उनकी निशानदही हुई है कि आप इन्हें कैसे इम्प्रूव करके बढ़ा के लेके आए और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को आप कैसे इम्प्रूव। इतनी मोटी मोटी स्टडीज हैं, बट ऑन द इंटरनेट SPDC जिसकी मैं MD थी, it has 700 researchers to its credit। नौजवान पढ़ो, सारी की सारी ऑनलाइन मौजूद है वो। थैंक यू कप्तान साहब। मैं चाहूँगा कि वाइस चांसलर साहब का भी इस पे एक पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ और उसके बाद एक और गेस्ट पैनलिस्ट हमें ज्वाइन करेंगी। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। एटलीस्ट आपने क्वेश्चन तो पूछा है, मेरी तरफ से मैं फिर रिपीट करूंगा आपके क्वेश्चन का जवाब। सबसे पहले सलूशन तो मैंने ये बताया कि आप सच बोलना शुरू करें, सच्चाई की तरफ आ जाएं। सच्चाई की तरफ जब आप आएंगे तो आपकी एजुकेशन की क्वालिटी बेहतर होगी। ठीक है, एजुकेशन में फंडिंग कम है, रिसर्च में फंडिंग कम है, लेकिन जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं क्या उसमें हम प्रॉपर तालीम हासिल कर रहे हैं? क्या बंदा घर में बैठ के भी तालीम हासिल कर सकता है? क्या आप खुद भी सीख सकते हो? क्या MIT के लेक्चर्स ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है? क्या यूट्यूब पे इल्म अवेलेबल नहीं है? सबसे बड़ी बात जो है, इल्म का लेवल बदल नहीं है। आप डिग्री के लिए पढ़ना छोड़ दें, आप ग्रेड के लिए पढ़ना छोड़ दें, आप इल्म हासिल करने के लिए पढ़ना शुरू कर दें, सारे मसाइल हल हो जाएंगे। और सच्चाई पे आ जाए, आपके सारे के सारे मसाइल हल, मैं गारंटी करता हूँ आपके मसाइल हल हो जाएंगे। अगर आप सच्चाई पे आएंगे, खुद आ जाओ, दूसरों को भी कहो वो भी आ जाए। और सच्चाई में वही है, आप नकल नहीं करेंगे, आप सिफारिश नहीं करवाएंगे, आप ही दौड़ते हैं, वहां से टीचर पे सिफारिश हो रही है, हर बंदे पे प्रेशर डाला जा रहा है, बस मुझे पास करा दो। अरे पास करके क्या करना है? डिग्री लेनी है, डिग्री लेके क्या करना है? सड़क चाक बनोगे? ये इतनी बेरोजगारी क्यों है? बेरोजगारी इसीलिए है कि एजुकेशन की क्वालिटी नहीं है। डिग्री तो बहुत सारे ले लेंगे लोग, लेकिन जब क्वालिटी नहीं होगी तो उससे मिलना कुछ भी नहीं है। इन दी एंड डिफरेंस वही लोग क्रिएट करते हैं जिनके पास इल्म है, वो डिग्री हो ना हो। आपके कितने लोग हैं जिनके पास डिग्री नहीं है? बिल गेट के पास कोई डिग्री नहीं है, स्टीव जॉब्स के साथ कोई डिग्री नहीं थी, इलॉन मस्क के साथ भी शायद डिग्री नहीं है, जुकरबर्ग ने दरमियान में छोड़ दिया सेकेंड ईयर में, उसके पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू देयर इकोनॉमी। देयर कंट्री की इकोनॉमी को वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जेब में तो सेपरेट पैसा है, ठीक है, वही सादगी से वो जिंदगी गुजार रहे हैं। हम लोग तो अगर कहीं पे क्लब भी भर्ती हो जाते हैं और जिंदगी आसमान तक पहुंच जाती है, तो हम एजुकेशन की तरफ माइल नहीं है। हमें सिर्फ डिग्री चाहिए ताकि मैं ऑफिस में बैठ के तो कमाए। ये जर्नलिज्म पे भी जो बातें आई,
जो टीचर्स भी हमारे थे, वो भी हमारी गलती है ना। अगर हमने अच्छे लॉयर क्रिएट नहीं किए तो अच्छे जजेस कहाँ से आएंगे? अगर हमने अच्छे जर्नलिस्ट क्रिएट नहीं किए तो वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हम कैसे करेंगे? उनमें सच्चाई का मादा ही नहीं होगा तो वो कैसे सच्चाई पे रहेंगे? उनको फिर आपके क्लियरली ऑन द रिकॉर्ड है तो मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। जब हम सच्चाई पे आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। हमारे साथ हमारे पैनल में सबसे हमारे इम्पोर्टेंट गेस्ट और आज की इस सेमिनार की चीफ गेस्ट भी है नुसरत वाहिद साहब के लिए मैं चाहूँगा बहुत अभी भी है और आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एमएनए हैं और आज हमारे शुक्र है कि एक ऐसा लीडर मिला है जो सच्चा है। आप उनकी बातें निकाल के देख लें 96 की, उससे पहले की, उसके बाद की 2011 में, 2014 में और इवन 22 में कोई भी उनके किसी भी कहे सुने में फर्क नहीं आया। जो कौन उनके उस वक्त थे वही आज है, जो एम उनका उस वक्त था वही आज है। तो मैं समझती हूँ कि इस तरह का लीडर मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, जो सच्चा हो, जो ईमानदार हो और अपनी जगह पे खड़ा रहे। क्योंकि देखिए बहुत अभी तो ताज़ा आप लोगों ने सब कुछ देखा है। मेरे ख्याल में अगर खामोश हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। प्लीज खामोश हो जाइए आप लोग। आई एम सॉरी, मैं इस तरह की हूँ नहीं, लेकिन एक्चुअली कोई बात नहीं कर पाता होता ना। तो कभी मैं कह रही थी कि अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा किस कदर हमें कॉल ऑफ फेम में फर्क नजर आया है कि ये अपोजिशन जो इस वक्त हुकूमत में है, एक तो खैरदार है, हम सब जानते हैं कि दे आर ऑल क्रिमिनल्स, हर एक के ऊपर कुछ ना कुछ मुकदमे चल रहे हैं, जमानत पे हैं, व्हाटएवर जो भी। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि ये जब अपोजिशन में थे तो हर वक्त महंगाई 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 रोना, हर बंदा एक्चुअली अलग से बैठ के कर रहा था। लेकिन जब इन्होंने अपने जलसे जुलूस वगैरह शुरू किए तो यकीन करें कि वो उस वक्त इनका एम ये नहीं था, उस वक्त सिर्फ ये था वो बचाओ स्कीम। लेकिन आस्ता आस्ता जब लोगों ने कहा कि क्यों कर रहे हैं आप लोग, एम क्या है आपका, तो उन्होंने कहा चलो ये एक पॉइंट लेते हैं महंगाई। अब करते रहे, शोर मचाते रहे, हर चीज पे यही होता रहा कि जी महंगाई क्यों हो रही, महंगाई क्यों हो रही, 1 रुपए की महंगाई नहीं होनी चाहिए, ये नहीं। लेकिन आप देखें आते साथ ही 15 दिन में कहां से कहां सब कुछ उलट पुलट होके रह गया कि बेचारा गरीब आदमी, मतलब पहले भी उसकी जिंदगी के हालात भी बहुत अच्छे नहीं थे, अब तो समझ नहीं आ रही कि वो क्या करेगा। मुशर्रफ ने मैं यही कहती हूँ सीएनजी करके एक घर में एक के बजाय 5-5 गाड़ियां कर दी। जब 120 में पूरा दिन गुजर जाता था आपका तो वो हर बंदा चाहता था कि मेरे पास गाड़ी हो। लेकिन अब जो हालात है उसमें लगता है कि वो एक गाड़ी भी नहीं रहेगी और साइकिल पे आ जाएंगे लोग। ये तो खैर एक हिसाब से बहुत अच्छी बात होगी कि चीन में सारे लोग साइकिल ही चलाते हैं, बाइसिकल, तो अच्छा होगा, एक्सरसाइज भी होगी, स्पेशली यूथ की। हमारे यूथ तो बिल्कुल किसी किस्म की एक्सरसाइज नहीं करते। हम लोग तो जैसे कॉलेज पैदल चल के जाते थे क्योंकि हम में से किसी को पसंद नहीं था कि गाड़ियों में जाएं या वैन में जाएं या किसी और चीज में, हम लोग पैदल जाते थे। अब तो रिवाज ही नहीं रहा, घर से निकलो गाड़ी खड़ी हुई बैठ गए उस पर पहुंच गए वहाँ पे। कॉलेज स्कूल भी ऐसे हैं कि वो घरों में बनाए हुए हैं ज्यादातर स्कूल, क्योंकि बस प्ले ग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है। तो यूथ के लिए तो मैं समझती हूँ कि जब आप कॉलेज और स्कूल बना रहे हैं तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि बड़े बड़े ग्राउंड रखे। कोई अच्छा भी आ गया या सिंध में जिस तरह रिवाज है नकल करने का, मोबाइल खोल के किताबें खोल के और बल्कि टीचर्स की मदद से, जो हम रोजाना टीवी पे देख रहे हैं आजकल, आप पास भी हो गए, आपको जॉब भी मिल गई तो, लेकिन अंदर से जो खुशी होती है ना वो नहीं मिलेगी कभी भी, जो अपनी सच्ची और अनथक मेहनत के बाद मिलती है। तो कराची में तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब तक इस तरह की चीजें नहीं है। मैं समझती हूँ कि
बच्चों की तालीम बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी उनकी ग्रूमिंग भी है। चाहे वो लड़के हैं चाहे वो लड़कियां, उन्हें पता होना चाहिए, स्पेशली जब को एजुकेशन में होते हैं। ऐसे एक सवाल आपके आने से पहले तक डिस्कस भी हुआ और एक अपने डॉक्यूमेंट्री भी यहाँ प्रेजेंट थी, तो उसमें ये पॉइंट था कि हम यौम तकबीर के सेमिनार की मुनासबत से पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम बड़ा मजबूत हो गया और डे बाई डे इसमें मजबूती आती जा रही है, लेकिन जो 5th जनरेशन वॉर है उसमें जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है और आजकल हर शख्स के पास ही सोशल मीडिया के तमाम गैजेट्स मौजूद हैं, तो उसमें क्या हमारी कौम कहीं डाइवर्ट तो नहीं हो गई है? क्योंकि एक पॉलिटिकल मूव अपनी जगह पर है, लेकिन उसके स्टैंडर्ड्स जो हैं वो हमारी यूथ ने कुछ और तो नहीं समझ लिए कि वो अपने इदारों के अगेंस्ट हो गए, या इस पर आप लोग क्या काम कर रहे हैं या क्या काम करेंगे? जब तक मैं बाकी पैनलिस्ट का आपसे भी तारुफ करा दूँ, डॉक्टर खालिदा गौस साहिबा सीनियर रिसर्चर हैं और प्लस ये कि एक थिंक टैंक को आप ऐसे लीड करती रही और काफ़ी अर्सा आपने मीडिया के साथ भी गुजारा। वाइस चांसलर UIT यूनिवर्सिटी डॉक्टर जौहर साहब और शुनाइदा नवाज फ्रॉम न्यूज़ वन TV। इस पर मैम ज़रूर बताइएगा कि ये 5th जनरेशन वॉर में किस तरीके से हम उसको सेटल करें इस मैटर। देखिए 5th जनरेशन वॉर जो है ये एक्चुअली अब वो 2nd वर्ल्ड वॉर और 1st वर्ल्ड वॉर की तरह नहीं होगा कि फिजिकली आप जा रहे हैं और चीज़ें हो रही है, लड़ाई कुछ इस तरह कर रहे हैं। अब तो जाहिर है हर एक के हाथ में वो सारी चीज़ें, जिस तरह आपने कहा गैजेट सबके हाथ में, पता नहीं है ये यूज़ कैसे करना है। देखिए हमारी यूथ नहीं कर रही है किसी भी उसके खिलाफ, इनको बहकाया जा रहा है। आप ये देखिए नून लीग के ही लोग, मतलब मैं नाम लेकर बुरा लगेगा मुझे, कि उनके बहुत बड़े लीडर 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म, जब उनका दिल करता है वो इंतहाई अजीबोगरीब गुफ्तगू शुरू कर देते हैं आदमी के खिलाफ, उनके सरबराह के खिलाफ, तो फिर उसके बाद उनकी बेटी साहिबा शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ें जब आप करेंगे अपनी यूथ के सामने, तो यूथ जो आपके पीछे है, आपको लीडर समझ रही है, आपको सच्चा समझ रही है, जब आप इस तरह की बातें करेंगे तो उनका क्या कसूर है? वो तो कच्चे ज़हन के बच्चे हैं ना, उनमें तो जो भी आप लिखेंगे वो लिखा जाएगा। तो ये फर्ज हमारा है, जिस तरह मैं समझती हूँ कि इमरान खान साहब के अंदर जो सबसे बड़ी बात है वो सच्चाई है। उन्होंने कभी कोई चीज़ जो की है झूठी नहीं है और वो उससे बैक ऑफ नहीं हुए, और हार्डली आर्मी को उन्होंने कोई इस तरह की बात की है। वो एक उनका बड़ा मशहूर चल रहा है आजकल न्यूट्रल की चीज़, तो वो उन्होंने खुद कहा था, एक्चुअली आर्मी चीफ ने खुद कहा था कि हम न्यूट्रल हैं, तो उनकी बात को रिपीट किया था, वरना शायद हमारे यहाँ से कभी भी ऐसी बात नहीं बाहर जाती। हम लोग नहीं हैं आर्मी के खिलाफ अल्हम्दुलिल्लाह, और कोई भी और इदारा जैसे अदालतें हैं, नैब है, FIA है, हम लोग नहीं हैं खिलाफ उनके। हमने बल्कि उनको आज़ादी दी थी जब आए थे कि आप लोग अपना सही तरीके से काम करें, आज़ादी से। उनको डिक्टेशन नहीं दे रहे थे कि फलां को इतने दिन की सज़ा दो, फलां को इतने दिन की सज़ा दो, फलां को गिरफ्तार करो। जो बिल मंजूर हुए तो वो बड़ी शर्मनाक बात की है। वो तो देखिए इनका पहला एम ही यही था हुकूमत में आने का, जिसकी वजह से आए हैं, जाहिर है जिसका आशीर्वाद है, आपको पता है किसकी सपोर्ट है, उनको कैसे आ गए। तो पहला मकसद ही इनका ये था कि हमारे ऊपर से केसेस खत्म हो। आप ये देखिए पिछले 3 साल में कोई सरकारी बिल्डिंग नहीं जली। उससे पहले क्या होता था, हर वक्त हर जगह लाहौर में, इवन स्विट्जरलैंड में जो गाड़ी फाइलें लेके निकल रही थी वो गायब हुई, नहीं पता चला। तो ये सारे सबूत मिटा देते हैं। व्हाइट कॉलर क्राइम का जो सबसे बड़ा खतरनाक एस्पेक्ट है वो है ये कि अगर आपको पता भी चल जाए कि कुछ हो रहा है तो सबूत नहीं मिलेंगे, सबूत नहीं मिलेंगे और आप पैसे नहीं ले सकेंगे, वो एक्नॉलेज नहीं करेंगे, क्योंकि वो उस तरह की चीज़ रहने ही नहीं देते जिससे आप कुछ पकड़े। तो अब आज देखिए उन्होंने काम कर लिया, अपना AVM भी ख़त्म कर दी, ओवरसीज के वोट भी ख़त्म कर दिए, उसके अलावा भी और पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो उनको सूट करती है सब कर दिया कि वो 90 दिन की बजाय 14 दिन का रिमांड हो गया। नैब का जो चेयरमैन है वो 3 साल के बाद दोबारा नहीं होगा, उसको मुंतखब नहीं किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें अपनी सहूलत के लिए कर रहे हैं।
सर हमारे बिल्कुल लास्ट मोमेंट में जी, जी, please. इंक्लूड करना है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो ये ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं कलेक्टिवली है। जी बोलिए। अच्छा हम एक साथ दोनों तीनों क्वेश्चंस नोट करके ना फिर इसमें कंक्लूजन की तरफ लेंगे। सर जैसे कि हम अपनी यूनिवर्सिटी की तालीम को देखते हैं, जब ये यूनिवर्सिटी तो वेल स्किलफुल बच्चे प्रोवाइड कर रही है पाकिस्तान को माशाल्लाह से, नहीं कि यूआईटी की बात करूं तो एनईटी, बैरिया, हबीब यूनिवर्सिटी, बहुत से यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो वेल स्किलफुल बच्चे तैयार कर रहे हैं, और वो बच्चे ऐसे हैं कि वो पाकिस्तान में सर्व करना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहे जिस फील्ड में हो वो कहते हैं कि भाई सबसे पहले पाकिस्तान में हमारा जज्बा ही यही होता है, लेकिन वो उनको वो अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिल रही कि वो पाकिस्तान को सर्व करें। फिर ये जब सूरत हाल होती है तो वो जाहिर सी बात है उनके भी बहुत से ख्वाहिशात होते हैं, तो फाइनेंशियल स्टेबल होने के लिए बाहर के मुल्क की तरफ चले जाते हैं। तो अगर यहाँ पर आप गवर्नमेंट से भी ताल्लुक रखने वाले बैठी हैं, मीडिया से भी ताल्लुक रखने वाले बैठी हैं, तो अगर उन बच्चों को पाकिस्तान में वो अपॉर्चुनिटीज दी गई होती तो हम करंट इशू में जानते भी हैं कि पाकिस्तान में अब क्या सिचुएशन पैदा हो रही है, और हम जानते भी हैं आगे किस तरह के सिचुएशन है। अगर वो अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तानी बच्चों को दिए गए होते तो मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान इस कंडीशन में ना होता, तो आज पाकिस्तान इससे बहुत ही ज्यादा डेवलप कंट्री में होता। तो इससे दूसरा सवाल भी है, ये पहले लड़की का एक सवाल है। My question is that about media, how media has allowed other cultures to penetrate our societies. और तीसरा सवाल है, एक और सवाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं माजरत करूंगा कि मेरा सवाल थोड़ा सा खतरनाक है, और बस मैं ये कहता हूँ कि रियलिटी बेस्ड सवाल करना चाहता हूँ कि अभी मैम आई भी है, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो है वो बिल्कुल वाइस चांसलर साहब की बात सही थी कि सच्चाई पे अगर हम आ जाएं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैम ने जैसे भी बताया कि इमरान खान साहब आए और वो एक सच्चे पक्के लीडर हैं। मैं अगर एज ए कराची का रहने वाला बात करूँ तो मेरे ख्याल में मैंने पिछले 3.5 साल में कराची की 150 यूटेन जो है वो हमारे पास ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। पहली बात तो माजरत सबसे, उनके इमरान खान के बहुत सारे सपोर्टर हैं, मैं खुद भी इमरान खान साहब को बहुत मौजूद है। तो रियलिटी में सवाल करना चाहता हूँ कि रियलिटी क्या है इसकी, क्योंकि अगले 3.5 साल में कराची के लिए कोई ऐसा कुछ होते हुए कि जो एजुकेशन और यूथ के हवाले से कुछ होते हुए मैंने नहीं देखा। सॉरी सर, थैंक यू। खाली भी को आएगा बेटा। सर एक क्वेश्चन और था आपके पैनलिस्ट से, लेकिन जिस तरह एक अरिजीत सिंह को लास्ट टाइम जब रिकॉर्ड किया गया था एक केस में, तो जो सीएसपी ऑफिसर्स थे, जो जितने सीएसपी ऑफिसर्स थे, उन्होंने बोला हम रिजाइन दे रहे हैं, किस लिए कि हमारे अरिजीत सिंह की जो है तौहीन की गई है। ठीक है, इसी तरह हमारे जब लास्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर साहब को निकाला गया तो उसके लिए बात की गई कि जितने एमएलए थे अरकान असेंबली जो इलेक्टेड थे प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो उन्होंने बोला हम रिजाइन दे रहे। ठीक है, ये इस तरह हर बंदा अपने सेल्फ के लिए ना, अपनी जात के लिए जो है वो रिजाइन दे रहा है, कि अपनी अना के लिए रिजाइन दे। अगर इस तरह अगर ये सारे रिजाइन देना शुरू कर देंगे, भाई ये पाकिस्तान में एजुकेशन निज़ाम सही होना चाहिए, नहीं तो हम पाकिस्तान को बंद कर रहे हैं, नहीं चल रहे भाई। नेशनल असेंबली के सारे जो इलेक्टेड है वो सारे रिजाइन कर दे, भाई भाई पाकिस्तान के लिए करेंगे, सही है। तो मैं चाहूँगा कि इस सवाल यूटर्न असल में थोड़ा कराची का भी दर्द है। ठीक, नहीं बिल्कुल
بالکل دیکھیں یو ٹرن کی بات یہ ہے کہ جب آپ کو ایک چیز آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر کچھ دیر بعد یا خود ریئلائز کرتے ہیں یا آپ کو لوگ ریئلائز کرواتے ہیں دس از رانگ, دس ول ناٹ بی گڈ فار یور کنٹری, فار یور اون سیلف اور فار دا پیپل آف دا کنٹری. تو اس وقت پھر اگر آپ اس چیز سے بیک آف کر دیں تو میرے خیال میں اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. کیونکہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کیا آپ جو بھی ایکشن کر رہے ہیں کیا وہ کسی کے فائدے کے لیے ہے, ملک کے فائدے کے لیے ہے یا نہیں ہے. ڈیفینیٹلی اگر وہ ملک کے فائدے کے لیے ہے تو وہ کنٹینیو کرے گا, لیکن اگر جہاں پہ یہ نظر آ جائے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں فوراً اس سے وہ کنٹینیو مائک آگے کرو. آپ کھڑے ہو کے زور سے اپنی جوان آواز میں بول دیں. اتنی بڑی پالیسیز موجود ہیں, اتنے منسٹرز موجود ہیں, تو ہر مرتبہ فیصلہ ہونے کے بعد کیوں پتہ لگتا ہے یہ قوم اور عوام کے لیے صحیح نہیں نہیں, یہ ہر دفعہ ایسا نہیں ہے. پچھلے 74 سال کی ہسٹری نہیں بتاؤں گی. میرا کام صرف 3.5 سال جو پہلی دفعہ ہم لوگ آئے ہیں حکومت پہ اور اس کے بعد ہم نے کچھ کیا ہے اور نہیں کیا. کراچی ایکچولی ہوا یہ کہ جیسے ظاہر حکومت سنبھالی فرسٹ ایکسپیرینس تھا, آپ کو ویسے بھی بہت زیادہ کچھ نہیں پتا ہوتا, پتا چلتے چلتے 1-1.5 سال لگ جاتا ہے. اس عرصے میں کون سی ایسی آفت تھی جو پاکستان میں دنیا میں نہیں ہوئی کہ آپ دیکھیں اکانومی تھوڑی سی بہتر شروع ہوئی تو کرونا ہو گیا. کرونا نے بڑے بڑے ملکوں کو ٹاپ اینڈ ڈاؤن کر دیا بالکل, کہ امریکہ -13 میں, انڈیا -6 میں, پاکستان 2 پہ تھا اس وقت -2 پہ. لیکن کس طرح ہم نے اس کو ریکور کیا, کتنی کم اموات ہوئی, کتنی وہ ساری ظاہر ہے کہ اسٹریٹجی تھی تو چل رہا تھا نا. ایسے تو نہیں ہو گیا کہ وہ اچانک ہی جی پاکستان کے اوپر اللہ نے بڑا کرم کر دیا کہ چونکہ مسلمان ہیں, مسلمان تو اور بھی بہت سارے ملک ہیں. انڈیا ہمارے پڑوس میں, آپ دیکھیں وہاں پہ کس قدر ڈیتھ ہوئی اور کہاں سے کہاں ان کی اکانومی چلے گی. ہماری گروتھ ہونا شروع ہوئی. کراچی کے اوپر اس لیے شاید توجہ نہیں دے سکے کہ وہ اس طرف بہت زیادہ الجھے ہوئے تھے. اب یہ جو یہاں پہ لوگ تھے جو ایم ایل ایز تھے اور گورنر صاحب تھے اور صدر مملکت بھی یہی تھے, ان سب کو چاہیے تھا نا کہ وہ جو ان کے نزدیک ہیں, ان کے نزدیک ہر کوئی تو جا نہیں سکتا. پرائم منسٹر بننے کے بعد تو اسپیشلی بہت زیادہ مشکل کام ہو گیا. تو جو لوگ نزدیک ہیں وہ ان کو ریلائز کرواتے رہیں گے, سر آپ نے یہ کرنا ہے, سر آپ وہ آتے بھی نہیں تو 1 دن 1.5 دن کے لیے آ رہے. ایم کیو سے ملاقات ہو رہی ہے, پیپلز پارٹی سے تو کبھی نہیں ہوئی کیونکہ چیف منسٹر کبھی نہیں آئے ملنے. تو تھوڑی بہت چیزیں ایسی تھیں جو ہرڈل بنتی رہی. ایسا نہیں کہ کراچی کو پیسے نہیں دیے, ایم ایل ایز کو بہت پیسے ملے اور وہ لوگ اپنے اپنے علاقوں میں خوب کام بھی کر رہے ہیں. لیڈیز کو کچھ نہیں ملا لیکن مردوں کو خوب ملا ہے. سیٹ والوں کو نہیں ملا, جو الیکشن جیت کے آئے تھے ظاہر ان کو دیا گیا. وہ لوگ کام کر رہے ہیں میرے ساتھ. میری اپنی ٹیم کے کچھ بچے یہاں بیٹھے ہیں, وہ بتا رہے ہیں راستے میں یہی بات کرتے ہیں کہ کس طرح ہم لوگوں نے اپنے اپنے علاقوں کی سڑکیں ٹھیک کی, بجلی کے پرابلمس کو ٹھیک کیا. پانی ایکچولی یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ پانی نہیں ہے, پانی ہے کراچی میں. جب کنٹینر میں آ سکتا ہے, جب اس میں پانی منگواؤ وہ فوراً آ جائے گا آپ کے گھر میں, تو پائپوں میں کیوں نہیں. یہ ایک بزنس ہے نا, بہت بڑا بزنس بن گیا ہے کہ جو کراچی بعد سے پانی آتا ہے وہ راستے میں غائب ہو جاتا ہے, کٹ کے وہ کس کی زمینوں کو سیراب کر رہا ہوتا ہے لیکن کراچی تک نہیں پہنچتا. تو یہ چیزیں ساری ہرڈلز ہیں اور کراچی کا ایسا نہیں تھا کہ بالکل دھیان نہیں دیا گیا یا دھیان نہیں دینا چاہتے تھے, بس وہ ٹائم اور ہرڈلز اتنے زیادہ آتے گئے کہ وہ چاہنے کے باوجود بھی نہیں کر سکتے اس چیز کو. اور جہاں تک پیکیج کی بات ہے, پیکیج کا اعلان کیا تھا نہیں ہو سکا, لیکن آپ دیکھیں گرین بس تو چلی نا. پیکیج کا اعلان کیا نہیں ہو سکا وہ پورا اس لیے کہ پیسے نہیں تھے ہمارے پاس. پیسے ہوتے تو ظاہر ہے ایسا نہیں تھا کہ وہ آدمی نہیں کرتا. آپ کو پتا ہے کہ سارے جو ہمارے ملک کے مسلمان ممالک ان کے پاس گئے, ایون چائنا کے پاس گئے, کہا کہ میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا. 1.5 سال اس کو ڈیلے کیا, ٹالتے رہے کہ نہ جانا پڑے, لیکن اس کے باوجود جانا پڑا. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو ایکچولی سب سے بڑا جو ہرڈل ہے وہ منی ہے. جب تک فائنینس آپ کی زیادہ اسٹرانگ نہیں ہوگی تب تک بہت مشکل کام ہے. ابھی بھی جیسے ہم لوگ اچھا خاصا 5.6 پہ چلے گئے تھے, جو آئی ایم ایف نے ایکنالج کیا ہے, جو یہ لوگ خود ایکنالج کر رہے ہیں, تو ہم لوگ ٹھیک ٹھاک طریقے سے اوپر جا رہے تھے. لیکن ظاہر ہے ایک بہت بڑی سازش ہوئی, کیا کیا کچھ نہیں ہوا آپ سب کو پتا ہے. آپ لوگ تو آج کل کے بچے سب جانتے ہیں
क्या किस किस्म के हालात हुए, तो यू टर्न को उसमें मत लें कि कोई गलत काम किया उन्होंने। अच्छा सर, डॉक्टर खालिद अब्बास से भी चाहूँगा कि ये बड़ा एक बुनियादी सवाल था इस बच्चे का कि हम क्वालिटेटिव एजुकेशन किसी हद तक दे भी रहे हैं, यहाँ बच्चा तैयार भी हो रहा है यूनिवर्सिटी में, लेकिन उसको अपना स्कोप और फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा पाकिस्तान के अंदर, तो क्या वो बाहर ही चला जाए, क्या करें? देखिए, जहाँ तक हायर एजुकेशन का ताल्लुक है, बिल्कुल ये मायूसी एग्जिस्ट करती है। मुझे ये लगता है जब मैं यूनिवर्सिटी में थी और मैं अपने इदारों को हेड कर रही थी, मैं उस पॉइंट पे जब फाइनल ईयर में स्टूडेंट आता था तो मैं उसके कहीं ना कहीं व्हेन आई वाज हेडिंग द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वुमेन स्टडीज, तो मैं रेलेवेंट इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस में इंटर्नशिप्स वगैरह या कुछ ना कुछ करती थी। और जब मैं इंटरनेशनल रिलेशंस को हेड कर रही थी तो गुजारिश ये है कि जब आप सीनियर लेवल के ऊपर आ जाते हैं तो वो उस लेवल, उस पॉइंट पे अगर बच्चों की इंटर्नशिप्स या मार्केट से आप उनका राब्ता कायम करा दें तो बच्चा ऑलरेडी इन सम वेज मार्केट में अपने आप को लॉन्च कर देता है। अब ये उसकी सलाहियत के ऊपर होता है कि वो अपने लिए काफ कर ले अब जगह वहाँ पे या नहीं कर ले, मगर उसका कनेक्शन वहाँ पे। उसके लिए बहुत ज़रूरी ये होता है कि इदारों को अपने MOUs रेलेवेंट इदारों के साथ साइन कर लेना चाहिए। मैंने जैसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वुमेन स्टडीज़ का MOU साइन किया हुआ था, तो वो उसके लिए सहूलत हो जाती है। मतलब बच्चे बड़े लॉस्ट फील करते हैं कि एक दफ़ा जब डिग्री हाथ में आ जाती है कि उसके बाद वो जाए तो कहाँ जाए। थोड़ी देर पहले बेटा मैं यही बात कर रही थी ना कि पिछले 8-10 साल के अंदर हमारे यहाँ बैंक्रप्सी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हुई है, खाली अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ है। तो ये इदारों को चाहिए कि वो आइडेंटिफाई कर दें। और मुझे याद है जब 80 की दहाई के अंदर हम खुद शुरू में, मैं तो खैर टीचिंग में 82 में आ गई थी, एंड आई एम टेलिंग यू माय एज इन दैट वे, बट स्टूडेंट गाइडेंस ऑफिसेस हुआ करते थे। अगर इदारे अपने यहाँ एक छोटी सी यूनिट स्टूडेंट गाइडेंस ऑफिसेस इस्टेब्लिश कर लें तो वो हर इंडिविजुअल को जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट उसका हो तो वो उनकी काउंसलिंग भी कर सकते हैं, उनको गाइडेंस भी दे सकते हैं, हाउ टू टैप, हाउ टू अप्रोच, हाउ टू प्रिपेयर। उनकी काउंसलिंग और गाइडेंस उनकी अपने इदारों के अंदर से होना चाहिए, बजाय इसके कि मुझे जैसे अभी सिंध गवर्नमेंट टैप करती है और साल में 2 मरतबा वो मुझसे वर्कशॉप्स कंडक्ट कराती है यूथ के साथ। ठीक है, थैंक यू। लास्ट 2 मिनट्स क्वेश्चन को रियासती, मैं इस सवाल को रिपीट कर देता हूँ, अगर इसमें कुछ इंप्रूवमेंट तो बता दीजिएगा। यही आपका सवाल था कि मीडिया जो है वो रियासत के अगेंस्ट यूज हो रहा है, कल्चर के अगेंस्ट। अच्छा, ऐसा नहीं है। होता यह है कि जो डिमांड होती है स्क्रीन पे वही कुछ दिखाना भी ज़रूरी हो जाता है कई दफ़ा, क्योंकि देखिए मीडिया जो है वो भी तो एक इंडस्ट्री है ना, ठीक है। तो आप जो डिमांड कर रहे हैं तो वही चीज़ दिखाई भी जा रही है। और दूसरी एक और बात मैं आपको बताऊं कि देखिए सियासत में शायद इतना शऊर पहले नहीं था जो अब आप लोगों को है स्टूडेंट लेवल पे, ठीक है। हर मिनट की खबर आपको मिल जाती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी काफ़ी तेज़ है। आप एक प्रोग्राम देखते हैं आपको सारी समझ आ जाती है पॉलिटिशियंस की, पॉलिटिक्स की, चीज़ों की ना। तो उसमें तो इसने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया है मीडिया ने। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती है कि आप क्या चीज़ पिक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत आपके ऊपर भी होता है कि आप क्या चीज़ उसमें से पिक करें। अगर आप में बहुत पॉजिटिविटी है तो ऑब्वियसली आप पॉजिटिविटी को ही पिक करेंगे। और ये चीज़ें तो हैं हर जगह ही है कि मतलब नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी जो है वो इफेक्ट करती है, लेकिन आपके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। अच्छा, मैं बस इसको यहाँ पे ऐड करेंगे बात को, और सवाल उसका बड़ा इम्पोर्टेंट था कि जब सब डिज़ाइन दे देते हैं तो अवामी इशूज़ पे भी क्या सब इसी तरह कभी ये बीइंग अ पॉलिटिशियन आपसे ही सवाल नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि जो सियासतदान आते हैं, जो MLAs बन के आते हैं स्पेशली, वो आज के ज़माने में करोड़ों रुपए लगा के आते हैं।
जो इलेक्शन कैंपेन है वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है आज कल। तो और मैं सोचती हूँ कि हमारे उसमें भी आपने देखा किस तरह लोग निकल गए, बिक गए बल्कि रादर। तो ऐसे में बल्कि डॉलर्स में शायद बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। तो शायद आप लोगों को पता हो कि मैं रिजेक्ट किए, मेरी वीडियो चलती रही है जी। तो हर बंदे को नहीं खरीदा जा सकता, इसी तरह हर बंदा इस्तीफा भी नहीं देगा। अगर एक जेन्युइन रीजन है और नजर आता है कि इस रीजन की वजह से कोई चेंज आ सकता है तो इस्तीफा दे दिया जाएगा, जैसे अभी हम लोगों ने दिया। और जब जेन्युइन लोग आएंगे असेंबली में तो ही बात बनेगी ना, तो ही काम होगा। क्वेश्चन किसका था वैसे बाय द वे? किसका क्वेश्चन था ये? अच्छा, तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि अगर सही मानों में पढ़े लिखे लोग वहाँ पे मौजूद होंगे। यहाँ मैं आपको बताऊँ पीटीआई के जो एमएलएस थे उसमें से 75 मास्टर्स थे, मास्टर्स की डिग्री थी उनके पास 75, और उससे भी ज्यादा पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर और डॉक्टरेट और पता नहीं क्या क्या कुछ पीएचडी वगैरह सब किया होता। तो इनके आप देख रहे हैं वजीर सेहत जो बने, आज उनकी वीडियो आई है और समझ नहीं आ रही थी कि क्या क्या किसके साथ खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कुछ तो पढ़ा लिखा हो बंदा जिस पोस्ट पे आप बैठा रहे हैं, जरूरी नहीं कि वजीर सेहत डॉक्टर ही हो, कुछ तो पढ़ा लिखा हो कि उसे थोड़ी सी समझ तो आ रही हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या काम कर रहा हूँ। पाकिस्तान में या बाहर में? पाकिस्तान नहीं, हमारी पार्टी में नहीं है। आप देख लें, आप शीर मजाक देख लें, तरह सड़क देख लें, आप असद उमर देख लें, आप अली जली देख लें, आप जिसको करेंगे आप वो पढ़ा लिखा। डॉक्टर यास्मीन राशिद, आप लोग 75 आप बता सकते हैं कितने मुनारे पर नहीं, हम लोग तो ज्यादा है ना, 153 है टोटल। मुनारिफ हमारे 22। अच्छा, वो मखदूम हुकूमत से थे या आपके पार्टी टिकट पे लड़के आए थे? काफी सारे हमारी पार्टी के उसमें भी थे और 3 खवातीन जिनको रिजर्वेशन पे मिला था। तो ऐसे बड़ी बात है। मैं ये क्वेश्चन आपसे भी, आपको नहीं लगता मीडिया में फेवरेटिज्म बहुत ज्यादा हो चुका है? मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, न्यूज़ और एआर क्लियरली बोल रहा हूँ। देखिए है, बिल्कुल ऐसा है, लेकिन ये तो शुरू से है, वैसे ही कह रहे हैं हमारा। मेरे ख्याल से खड़े थे तो एनवेलप जो था थोड़ी देर पहले के बाद सा गले लगने के बाद हमारी जो यूथ है वो इन चीज़ों को बड़ा फोकसली देखती है। और हमारे डायरेक्टर आईटी काजी नुमान साहब भी एक मैसेज देंगे कि उससे पहले मैं चाहूँगा कि हमें 5 बजे क्लोज करना था। तो कुछ बच्चों के लिए यहाँ पे सर्टिफिकेशन है। अभी 3 दिन पहले नुसरत साहबा और डॉक्टर खालिदा साहबा की गुजारिश में लाना चाहूँगा कि एक नेशनल यूथ इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान रंजन सिंह आए हुए थे और यूआईटी ने उसमें पार्टिसिपेट किया, बल्कि उसकी ऑर्गेनाइजिंग में बड़ा रोल प्ले किया। हमारे तमाम सर्टिफिकेट हम प्रेजेंट करवाते हैं और 1 by 1 इन बच्चों के नाम कॉल कर लेते हैं। Who is the ambassador of the PFIP? Yeah, Usman, please collect your certificate. Next, I would call out the names of all the volunteers that participated in the economic conference. So, first of all, Shabir Rais, Arif Azim, Hamza Fareed,
मोहम्मद हुसैन, नीरज गांधी, मोहित कुमार, Naseem Khalid, and lastly I would like to call Atta Subhan on stage for the best volunteer. Thank you so much. And in the end, I will request Vice Chancellor UIT University to present souvenir for our guest of honor, Ms. Shumaila Nawaz, panelist of Yom Takbir seminar. फोटो काट लेनी चाहिए मिस शुमाइला नवाज की। Once we give for Dr. Khalida Box. Thank you, ma'am. तालियां आप लोगों की चले। के साथ मिक्स नुसरत वाका नेशनल असेंबली प्रैक्टिस कर रहे हैं सर। इंडियन नेशनल रिक्वेस्ट ऑन वॉलंटियर्स ऑर्गेनाइजिंग टीम society members, UIT Ethics Society, UIT Theatre Society, UIT Public Speaking and Literary Society and teachers, please आप सब फोटो के लिए आ जाएं। बच्चे आगे की तरफ आ जाएं और फिर गेस्ट आ गया।